الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سب سے پہلے درود پاک پڑھا اس کی فضیلت سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر اکثر مجموعوں میں بیانات میں بیچ بیچ میں آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے نا. درود پاک کی بے شمار فضائل جو محفلوں میں پڑھائے جانے کی ایک بہت پیاری فضیلت ہے. تو وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اور پھر دوسری اور پیاری فضیلت حج کے تعلق سے بتا دوں تو ماشاءاللہ مزہ آ جائے گا. سب سے پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجالسوں کو مجھ کے درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لیا کرو کہ یہ درود پاک پڑھنا کل و روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا اور جس کے لیے نور ہوگا وہ اہل نار سے یعنی دوزخ سے نور ہوگا. یہ پیاری فضیلت ہے. اسی لیے مجمع جب بھی ہوتا ہے اجتماعات ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں اس درمیان میں درود پاک پڑھایا جاتا ہے. اور دوسری فضیلت پڑھ کے جھوم اٹھیے کہ جب آپ نے اکثر لوگوں نے الحمدللہ حج کی سعادت سے سرفراز ہونے والے آپ سب اور حج کہ تھوڑا بہت مطالعہ بھی کیا ہوگا, دوست احباب رشتے داروں سے بات چیت بھی کی ہوگی, کچھ باتیں سمجھنے کی کوششیں بھی کی ہو گئی. تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف کے کتنے پھیرے ہوتے ہیں؟ 7 پھیرے. ہر پھیرے کو شوط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شوط. 7 پھیرے کا ایک طواف ہوتا ہے اور جب 7 پھیرے کرتے ہیں تو استلام کتنے ہوتے ہیں؟ 8. استلام یعنی حضرت اسود کو بوسا دینا ہے نا. تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا ہر پھیرے کی ایک الگ الگ دعا ہے. ابھی اتنی دعائیں ہم کب پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے, دیکھ دیکھ کے پڑھنا بھی تو وہاں اتنی بھیڑ رہے گی, دشوار ہے. تو آپ کے لیے آسانیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری مادری زبان میں دعائیں مانگتے رہے, درود پاک پڑھتے رہے, دعائیں مانگتے رہے ہے نا. اس طرح سے آپ دعائیں مانگتے رہنا. اور بعض میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اور کیا مانگوں کیا مانگوں, نام لے لے کے یاد کر کر کے سب کے نام سے جنہوں نے بھی کہا ہے دعائیں مانگتے رہنا یہ پھیروں کے درمیان میں. اور اگر بعد میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اور کیا پڑھوں تو آپ درود پاک کا مت کرتے رہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا, اس کے بعد بخش دے گا. ماشاءاللہ یہ اتنی پیاری بات ہے. تو طواف کے درمیان میرا اپنا معمول ہے کہ میں درود پاک کے علاوہ کچھ نہیں کروں. تو الحمدللہ. اور آپ کو تو معلوم ہے رکن یمانی سے رکن اسود تک ربنا آتنا جو جامع دعا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بہترین آسان سمپل چھوٹی دعا جس میں سب کچھ آ جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ دنیا اور آخرت کی حسنہ اور دوزخ سے پناہ وادخلنا جنت یا ابرار یا عزیز یا غفار یا ایڈیشنل کہ جنت میں جانا. کیونکہ وہ جو رکن یمانی سے رکن اسود تک کا حصہ ہے اس سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے مستجاب کا نام دیا ہے کہ قبولیت کی جگہ. اس لیے کیونکہ اس دیوار پہ رکن یمانی سے رکن اسود تک یہ رکن اسود ہے, رکنا یعنی کونا, اور یہ جو کونا ہے یہ رکن یمانی ہے. آپ کا پھیرا یہاں سے شروع ہوتا ہے, ایسے کرتے کرتے آپ یہاں آؤ گے اور یہاں سے آپ ربنا آتنا پڑھتے ہو. تو اس دیوار پہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کرنے کے لیے مقرر کیے. ابھی جب فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ بے شک قبول کرے گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ درود پاک اور اس کا یہ معاملہ تھا. الحمدللہ اب حج کی بات ہے تو کچھ لوگ اور آنا باقی ہے, کچھ اور باتیں آپ کو سمجھاتا چلوں تاکہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد 5 منٹ سنوں گا. یہ بھی آپ کے لیے بہت اہم جانکاری ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. لوگوں کتنی بار جا کر آتے ہیں مگر کچھ پوچھیں گے تو بتا نہیں پاتے. تو الحمدللہ ابھی وقت کی سعادت لیتا ہوں میں آپ کو, آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. نالج کی بات ہے, دین کا نالج ہے, الحمدللہ ہم سب کو ہونا بھی چاہیے. جیسے جو بات فرض ہوتی ہے اس پر وہ اس کا نالج رکھنا واجب ہو جاتا ہے. جب تک بچہ ہے, بالغ نہیں ہوا, نماز کے فرائض معلوم نہیں, نماز کے شرائط معلوم نہیں, نماز کا کچھ پتہ نہیں, تب تک ٹھیک ہے. جیسا ہی بالغ ہو گیا تو اس پہ فرض ہو گیا کہ ابھی وہ علم حاصل کرے. زکوٰۃ جب تک فرض نہیں تھی تب تک ٹھیک ہے, زکوٰۃ کے مسئلے معلوم ہی نہیں کیونکہ مجھے
मुझे फर्ज भी नहीं, बस जिस दिन ज़कात फर्ज हो जाएगी तो उस पे लाजिम है कि वो ज़कात के अहकाम भी सीख ले। तो इसी तरह से हज भी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत दे रही है, तो आपको भी लाजिम है कि आप सीख के जाएं, समझ के जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मामला तो ये होते हैं कि हम क्या दावतों में रह जाते हैं और किताबों का मुताला करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता, तो वक्त निकालें। हज वो फ़राइज़ा है कि जिनमें जन्नत की बिशारत। ऐसा कोई फ़राइज़ा में स्ट्रेट ऐसी हदीस मुबारक मेरे नज़र में नहीं आई कि हज मबरूर की जज़ा जन्नत ही है। इतनी प्यारी हदीस मुबारक, क्या हज मबरूर की जज़ा जन्नत ही है, इतनी प्यारी। तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम क्या तैयारी नहीं करेंगे? टूर में जा रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत है कि बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी, बस हज तो आपको करना है, फराइज़ आपको अदा करना है, इबादत आपको करनी है, सपोर्ट मिलेगा। मत इबादत तो यानी जैसे कब्र में हर आदमी अकेला ही जाएगा, तो वैसे इबादत भी आपकी है, नेकियां आपको मिलती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज के साथ जाए, तो क्या होता है ना, वहाँ पर है ना लोग बेशुमार परेशान हो जाते हैं, अच्छे अच्छे मौलाना लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो रेगुलर सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए मालूम भी नहीं होता। तो आप नॉलेज के साथ जाएं, अपने मौलाना लोगों से भी रब्ता रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ग्रुप बना हुआ है इनका भी, जी कम्युनिटी का ग्रुप बना हुआ है, हज कम्युनिटी का, ये मुझे भी इधर आया है, तो आपके कुछ सवाल उसमें आएंगे तो मैं भी उसका आपको इजाज़त करते जाऊँगा इंशाल्लाह, जैसे भी बात। तो आप नॉलेज के साथ जाएं प्लीज़, आपको किताबें मिलेंगी, यहाँ से सब कुछ मिलेगा, आप अच्छे से मुताला करें, मुताला करते ही जाए, क्योंकि लोग कुछ भी कहते हैं और आप 2 लोगों को 3 लोगों को बात करेंगे, 3 अलग जवाब देंगे और वो परेशान हो जाता है। तो स्टडी करके है ना, जो इल्म वाला होता है वो अख्याला होता है, जल्दी से मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अख्याले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक छोटी सी बात बता दूँ आपको, ये देखिएगा, ये आप जब खाने काबा पे पहली नज़र, ये कबूलियत की घड़ियाँ, अभी खाने काबा पे आप जाओगे तो तवाफ कहाँ से शुरू होता है? रुकने अस्वद से, सही है। आप पहले अंदर में गए खाने काबा में, सीधा कदम अंदर रख में बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इत्तिकाफ की नियत करोगे, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ करोगे। आपके साथ मस्तूरात है तो उनको साथ में बुलंद आवाज़ में करना, क्योंकि मस्जिदों में इनका आना जाना यहाँ पर होता ही नहीं, अपने वो अलाउड भी नहीं है शरीयत के हिसाब से। तो आप उनको अपने साथ बढ़ा लीजिए, अल्लाहुम्मा पहले हुआ हुआ नवाई, तो सुन्नत इत्तिकाफ, ये भी सुन्नत इत्तिकाफ की नियत दिमाग में रखना था। नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से अफजल है, ज़बान से नहीं बोले, दिल में लिया कर मैं इत्तिकाफ से हूँ। तो क्या होगा ना, कोई भी मस्जिद में खाना पीना सोना ये अलाउड नहीं है, अगर ये इत्तिकाफ की नियत कर जाओगे तो ये सब बातें चाहिए। अभी वहाँ आपको ज़मज़म भी पीना है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बात याद रखें, लेडीज़ कोई भी अकेला नहीं छोड़ेगा, आपके साथ आपकी माँ बहन बीवी जो कोई भी है, बिल्कुल एक पल के लिए भी आप साइड पे नहीं करोगे। और याद रखना, आपके मातहत है, आप उनके कफील हैं, आप उनके मरीम हैं, और आपकी जिम्मेदारी है। बाज़ औक़ात यहाँ देखता है हम दर्द से इस्तेमाल होता है ज़बान, क्योंकि लेडीज़ है, वो अल्लाह ताला ने उसमें नज़ाकत रखी है, आपके जैसा वो फटाफट कर भी नहीं सकेंगी, मगर आपको बिल्कुल ठंडा रहेगा, वो गर्मा गर्मी वहाँ जाके नहीं करती। वो बहुत किस्से देखे हमने, बहुत मामला देखे हैं, बेटा माँ के साथ भी क्या क्या मामला करता है, रहमान वाला हाफिज, आपने बिल्कुल तहम्मुल से रहना। आपका कारोबार बिजनेस घर बार सब पीछे रह गया, अल्लाह की रज़ा आपका मकसद है। हज का मकसद क्या है? हाजी बनना मकसद नहीं है, अल्लाह ताला की। और कुरान पाक में जो इरशादात हैं, जो रिवायत यानी जो आयत मुक़द्दसा है, उसमें शायद ये हज के ताल्लुक से ही आयत ऐसी है कि जिसमें अल्लाह के लिए लफ्ज़ है, फ़क़त लिल्लाह, तुम अल्लाह हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा। तो रियाकारी का शमूलियत नहीं होना चाहिए कि मैं हाजी बनूँगा और अल्लाह राजी हो जाए मुझसे, बस अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, ये बात नहीं है। अभी आप जब दाखिल हो जाओगे तो क्या जिसमें तवाफ़ करते हैं उसे मताफ़ कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो इस्तिलाहात हैं, जो वर्ड्स है, वो मैं आपको अभी बताता चलूँ, तो और कुछ लोग आई हैं तो शुरू करने में आसानी हो जाए। इसको क्या कहते हैं, जहाँ तवाफ़ करते हैं उसे मताफ़। तवाफ़ कहाँ से शुरू होता है? हज़र अस्वद से, रुकन अस्वद, हज़र अस्वद रुकन यानी कोना,
ये रुकने असद हो गया, ये रुकने इराकी हो गया, रुकने शामी हो गया, रुकने यमानी हो गया। ये चार कोने, चार डायरेक्शन जो है मुल्क की, वो बताता है। हजरे असवद इसलिए हजरे असवद, रुकने हजरे असवद, रुकने इराकी, ये इराक की तरफ जाने वाला रास्ता है। रुकने शामी, मुल्क शाम की तरफ, सीरिया की तरफ। रुकने यमानी, यमन की तरफ जाने वाला। और यहाँ से यहाँ की दीवार को मुस्तजाब है। और ये जो खाने काबा का बाबे खाने का बाबे काबा यानी बाब यानी दरवाजा, काबे का दरवाजा, काबे का दरवाजा और हजरे असवद उसको मुल्तज़म, हाँ मुस्तजाब, ये इधर की दीवार को मुस्तजाब, मुस्तजाब इतनी जगह यहाँ पर ये मुस्तजाब, ये मुल्तज़म और ये मुस्तजाब, 3 एम है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी देखा तो जिब्रील अमीन यहाँ चिमटे हुए हैं इस दीवार को और नमाजी को या अल्लाह करके दुआएं मांगी, तो आपने भी चिमट के दुआएं मांगी, मगर एहराम के हालत में नहीं। जब आप बगैर एहराम में, क्योंकि यहाँ पर इतनी खुशबू होगी कि आप पे दम आयद हो जाए। और याद रखना, दम दम करके लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वैसे डरने की बात नहीं है। जब तक आपका कोई वाजिब दर्द नहीं होता तब तक दम नहीं लगता। दम इतना आसान नहीं है, हमारा दीन आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। लचक भी है, परेशान है, तकलीफ है, तो उसमें भी रियायतें मिलेगी आपको। और कोई भी बात में से दम आ गया, दम ऐसा आसानी से नहीं आता है जब तक आपका कोई वाजिब दर्द न हो जाए। हाँ, आपके सदकात आने हर एक पे आए, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिस पर कुछ न कुछ एहराम की पाबंदियों में खलल न हो जाए और सदकात न आए, ऐसा होता ही नहीं। अभी आप चल रहे हैं, आपके आगे कोई एहराम, आम तौर पे एहराम की आदत तो हमें होती नहीं, और उसका एहराम बेचारे का वो इस तरह से, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा एहराम कैसे बांधना है। तो आप इंशाल्लाह इंडिया से लेकर उम्रा करें तक भी आपका खुलेगा नहीं, और सितरे औरत भी बरकरार रहेगा। तो लोग क्या करते हैं कि चादर निकलती रहती है, चादर कभी वो बैग उठाते हैं तो उसकी चादर कहाँ बेचारों पीछे करता है, पीछे से आदमी जो चलते रहता है वो भी आपके जैसा एहराम में रहता है, उसके चेहरे पे चादर, ये जैसे ही हो गया तो आपसे तो आ गया। तो सदके तो हर एक पे आने हैं। इंडिया में आने के बाद आपने समझना ना, एक सही इदारे में सरकार ने दम खाली हुदूद हरम में होता है, यानी दम यानी बकरे की कुर्बानी, और वो उससे बड़ा दम होता है, उसको तो बड़े की कुर्बानी करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे मसले होने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तिलाहें हैं ये। और ये जो यहाँ पर जो नीम दायरा बना हुआ आपने देखा हुआ, उसे हकीम पाक कहते हैं। यहाँ पर मिजाब रहमत है, पर नाला है ना, इसमें भी आप है ना जब नफली तवाफ करने जाओगे या इस तरह से, तो अंदर में नमाज पढ़ना कोशिश करने की, और पहले 3 सब तक कोशिश करना, क्योंकि बाद में इन्होंने दायरा ज़्यादा ही कुछ बड़ा बना दिया है। ओरिजिनल जो था वो 3 सब तक का, जो मैंने रिवायत में पढ़ा। और मिजाब रहमत के नीचे पढ़ने की कोशिश करना, और इसी दीवार को चिमट कर दुआएं मांगना, है ना। और ये मिजाब रहमत यानी पर नाला, यानी ये काबे का जो पानी है वो ढलान होकर यहाँ से हतीम पे नीचावर होता है, और ये ढलान जो है ना ये होती है मदीने की तरफ, इसीलिए वो किसी कौवा ने कहा है ना, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर से। तो ये दरअसल उसकी असल ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तिलाहें हैं। और इस तरह से आपने ये याद कर लेना। अभी इज्तिमा किसे कहते हैं? सिला कंधा खुला रखने को इज्तिमा कहते हैं। इस्तिलाम किसे कहते हैं? हजरे असवद को बोसा लेने को। अभी हजरे असवद को बोसा लेने में क्या होता है, अक्सर लोग देखा है, आप अगर उम्रा वगैरह किए होंगे, ये इस तरह से, यानी ये समझो हजरे असवद है और आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो लोग ऐसा ऐसा करके चलते रहते हैं। ये ऐसा ऐसा करने से नहीं होता है। इस्लाम आपका सीना, आपका चेहरा हजरे असवद की सीध में, लाइन में आवे, दोनों तलवे बराबर उसके सीध में लो, आप अच्छे से ऊपर करो। लेडीज मुस्कुरा एज यूजुअल सिमट कर ऐसे करेंगी, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, और चूम लेना है। क्योंकि हजरे असवद ये एक बहुत बड़ी इबादत है और हजरे असवद का बहुत बड़ा मर्तबा है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसे इस तरह से कहा कि ये हजरे असवद तो एक पत्थर है, अगर मेरा आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका बोसा न देते तो मैं हरगिज़ बोसा न देता। मगर पीछे जब मौला अली मुश्किल कुशा खड़े थे, उसने कहा कि उमर तुमने हक बात कही, मगर इसी के साथ ये फायदा भी देगा नुकसान भी देगा। क़यामत के रोज अल्लाह ताला इसे गवाही और बिनाई अता फरमाएगा और हक के साथ जिसने इस्तेलाम किया उसकी गवाही देगा। अरे इतनी बड़ी फजीलत है हजरे असवद की, लोग समझते नहीं।
ऐसे ऐसे अल्लाह अकबर करके चल रहा है, क्या करें? इबादत इतनी बड़ी है, आपका कारोबार नहीं है, सब कुछ पीछे रह गया, सुकून से क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ? ये दरअसल हजरे अस्वद की बात ये है कि हजरे जब अल्लाह ने हमारी रूहों को पैदा किया, तब अल्लाह ने ऐलान किया कि क्या मैं रुबूबियत का, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब की रूहों ने कहा जी हाँ मौला वो मेरा रब है। हाँ? उसके बाद जब दुनिया में तशरीफ लाते गए लोग, तो मुस्लिम सब तो कोई मुशरिक बन गया, कोई यहूदी, कोई नसारा, कोई हिंदू, पर रब तो वही है। तो जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो इन्होंने कबूल किया है और वादा किया है कि मेरी रुबूबियत का, ये इसका रजिस्टर कौन संभालेगा? तो किसी ने नहीं संभाला, हजरे अस्वद ने अपने आप में संभाला, इसीलिए वो कयामत के दिन गवाही होगा। हाँ? याद रखना, कितनी प्यारी बात है। तो हजरे अस्वद को हल्के में लेना नहीं है। वहाँ की कोई भी चीज हम पूरी सूरतों पर अमल करें, पूरे मुस्ताहत पर कोशिश करें, कोई भी चीज न छूटे। वहाँ एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। तो साथ में ये भी ध्यान नशीन रखना कि एक गुनाह भी 1,00,000 में बराबर है। लोग उसका तसव्वुर नहीं मानते। शैतान इतना मौजूद है वहाँ पर, आपको ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि आप आमतौर पर नहीं करते। कभी बिल्कुल खामोश रहने वाला संजीदा आदमी वहाँ जाके गर्म होना शुरू हो जाता है और फिर दूसरों को भी वर्गलाता है, अरे चलो ऐसा करिए। हमें कुछ नहीं करना है, अल्लाह ने बुला लिया, बात खत्म हो। वो मेजबान, हम मेहमान, समझे? अभी सिंपल बात है, हमारे जो अक्सर देखते हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे खाने में हम बच जाते जो छोटा कटोरा, मेरे ख्याल से हर एक के घर के फ्रिज में मिलेगा बचा हुआ सालन वगैरह, और वहाँ पर यूँ ले लेते और खाना होता नहीं और फिर दस में उसका गुनाह है। जब चावल के एक दाने का भी गुनाह है, तो इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत है, आप जल्दी में डाल दें, उसका जवाब कौन है? ऐसा किया है करके बोलते नहीं, उसमें छुटकारा नहीं है। और याद रखें, मैं साथ में रखूँ, याद रखें एक बहुत अहम बात, प्लीज मुझे गलत न समझना, कोई भी बारे में बदगुमानी, ये शैतान का वार है। हर एक को लगता है कि मेरा पैसा लेके जा, ये बात बहुत बड़ी गलत है। मेरे एक पड़ोसी ने कम से कम 400 करोड़ की पार की है। मैं 2005 से पीछे चला गया, लॉकडाउन के अगले साल उन्होंने हज किया। 400 करोड़ होने के बाद भी अल्लाह ताला ने वो शहादत नहीं दी। ये अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह ताला का करम है कि आपको बुला, ये नोट का मामला ही नहीं है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, बड़े नसीब की बात है। रोंगटे खड़े होते हैं इतने हज करने के बाद भी, इतने उम्रे करने के बाद भी ये बात करता हूँ कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है। हर एक ने अपने आप को सोचना कि अल्लाह इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा करीम है कि मेरे जैसा ना उसकी कोई इबादत उसके लायक है, न कोई नेक अमाल है, और फिर भी उसकी करम नवाजिश कि मेरे गुनाहों को बख्शने के लिए मुझे बुलवा दिया। इससे बड़ा की करीमी रहने की शान क्या? अपने आप को ही यूं कहे कि इससे बड़ा मेरे से अल्लाह ताला की शान इससे बड़ी क्या हो सकती है कि मेरे जैसे को हज के लिए बुला दिया। ये अपने आप को ढालने की कोशिश करो। आपको आपके जो अरकान वगैरह तो मैं समझा दूंगा, सिखा दूंगा, किताबों में मिलेंगे, मगर आप अपने आप को ढालो तो आप किस दर पे जा रहे हो, किस दर पे जा रहे हो। कितना बड़ा मामला है हज, ये कितनी बड़ी इबादत है और कितना बड़ा करम है आप पर, और कितने बड़ी जगह पर जा रहे हो। अरे सर का मौका है वो जाने वाला, यानी इस तरह से तो फरमाया हमारी औकात ही नहीं कि उस सरजमीन पे हम कदम भी रख सकते। ये अपने आप में कोशिश करें, किस घर पे जा रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ाई कर देना है। आपको जो आदमी जैसे बुलाएगा ना, आप इस तरह से रेडी होके जाते हो। बराबर कोई एक मोहल्ले का बड़ा बुलाएगा तो आप एक अलग अंदाज में जाओगे, एक स्टेट लेवल पे कोई बुलाएगा तो यू विल बी डिफरेंट करता है, और जब और कोई बड़ा बुलाएगा बहुत अलग अंदाज में, तो हाकिमीन आपको बुलाएगा। हाँ? तो हमने कैसा जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसकी हज ये तकलीफों का नाम है। हज औरतों के लिए और बड़ी उम्र वालों के लिए जिहाद करा दिया है आका अलैहिस्सलाम। तकलीफ तो होनी है। अरे दुनियावी पैसे कमाने के लिए, 1,00,000 2 लाख कमाने के लिए, समझो 10,000 के 2 लाख होने वाले हैं, तो हम 8 दिन खाना पीना सोना पीना सब छोड़ देते हैं, तो यार 2 लाख बन जाएंगे हमारे। और यहाँ तो यार जन्नत का वाला और मगफिरत की बात,
तो कितना बड़ा मामला, इससे बड़ा मामला हमारी जिंदगी में एक मुसलमान के लिए है ही क्या कि उसकी मग़फ़िरत की उसे बिशारत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल काम सब्र से काम लेना है, सब इंशाल्लाह। नफ्स मारने की मशीन है तो हज है। क्यों आपके सूट बूट कुछ भी नहीं चलने वाले, न बूट चलेंगे न सूट चलेंगे। जो कफन के कपड़े हैं, 2 बेसिले कपड़े वो पहन के आपको जाना है, जूते भी नहीं पहन सकते, और आपने चप्पल पहनी है ताकि ये पैर का ये उभरा हुआ हिस्सा खुला दिखना चाहिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम को पूछा गया कि हाजी कैसे होना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया महिला पूछेगा। कैसा? महिला पूछेगा। और अल्लाह जब अरफात का दिन होगा और अल्लाह तजल्ली फरमाएगा अहले अरफात पर, हाँ, तब फरिश्तों के सामने फक्र करेगा और फरमाएगा ये फरिश्तों गवाह हो जाओ, देखो परागंदा सर, अल्फाज याद रखो, परागंदा सर, बिखरे हुए बाल, मैले कुचे हुए सफर की वजह से होकर मेरे रहमत के उम्मीदवार होकर आए, ये फरिश्तों गवाह बन जाओ मैंने इन सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह। तब फरिश्ते कहेंगे कि मौला उसमें फला फला उसकी तो क्या बात करे। अल्लाह कहेगा मैं वो आज अरफात में खड़ा है, मेरा रहमत का उम्मीदवार होकर खड़ा है, मैं उसे भी बख्श दूंगा और फरिश्तों याद रखता हूँ जिसके लिए दुआ करेगा उसकी भी मग़फ़िरत करूंगा। सुभान अल्लाह। यानी इतनी बड़ी बातें हैं ये हज में। ये फजाइल आप अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि किस स्तर पे यार हज इतना बड़ा मामला है, और इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने हमें वक़ूफ़ अरफा के दिन में वक़ूफ़ अरफा के लिए अरफा के मैदान में खड़ा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बातें हैं, और मैं अभी मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ, मगर ये फ़ज़ाइल पे ध्यान रहे। अरकान आप सीख जाएंगे, अरकान 19-20 हुए तो अल्लाह ताला ने वो मुआफ़ भी कर देगा, आप समझे ना, मगर फ़ज़ाइल पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल। ऐसे ही देख रहा था, एक सूफियाना सोच के हिसाब से पढ़ रहा था, वही मैं सोच रहा था कि महिला पूछेगा, अल्लाह ताला भी ये फरिश्तों के सामने कह रहे हैं देखो बिखरे बाल, यानी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हाजी को कैसा होना चाहिए। तो यानी इसमें क्या है, ये सूफियाना सोच है। हम धन के कैसे जा सकते हैं यार, और दुनिया एक पैसे 10 रुपये मांगने के आने वाला वकील की साल में आता है, और हम तो मग़फ़िरत की भीख मांगने जन्नत का मुद्दा लेने जा रहे, तो हमने कैसे जाना, कैसे जाना। तो अपने आप में कहने की कोशिश करो, कुछ नहीं कहना है किसी को भी। आपके हर में तकलीफें होगी, सफ़र है, और सफ़र में तकलीफें न हो तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक कभी भी झूठ हो ही नहीं सकते। हाँ, सफ़र में तकलीफें होनी है, परदेश का मामला है, बहुत कुछ है, हज तो इतना बड़ा अरमान है, कुछ नहीं, सब्र करना, बस सब्र करोगे उसका सब्र की सज़ा जाओ। बोल के अपने अमाल को आदत न कर देना, पैसा भी गया, मेहनत भी गए, हाथ में कुछ नहीं आया, ऐसा ना हो जाए। और जैसे बताया कि अल्लाह की रज़ा पे, ये सबसे अहम है। मैंने एक बार देखा, वो हज अभी रिटर्न आने वाले थे, तो अपनी बैग के पीछे जो नाम उसने मार्कर पेन से लिखा था उसके आगे हाजी लिख रहा था। अरे ये समझ कि आने के बाद नेम प्लेट भी बदल जाती, पहले खाली उस्मान नाम था, अभी हाजी उस्मान आ गया, लिया था। अल्लाह ताला इससे महफूज, इससे तमाम नेकियां जाया हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार हम सब मिलकर तलबिया पढ़े और ये शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। माशाअल्लाह, इहराम की हालत में आने के बाद सबसे बेहतरीन वजीफा है तो तलबिया। तलबिया यानी अभी हमने जो लब्बैक पढ़ा हो, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हाजिर है ना। और जब ये बंदा पढ़ता है तो उसे खुशखबरी सुनाई जाती है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपको कुर्बान खुशखबरी क्या जन्नत की? तो आका अलैहिस्सलाम लब्बैक जब बंदा पढ़ता है तो तमाम उसके लेफ्ट राइट आगे पीछे जमीन के साथ में दर
तमाम ढेरे दर पत्थर सब उसके साथ लबैक पढ़ते हैं। और लबैक ये एक जन्नती समझो वजीफा है एहराम के हालत में आने के लिए। इसकी कसरत करते रहें। मर्द हजरात जोर से पढ़ना है और लेडीज ने आहिस्ता। याद रखना औरत का आवाज भी औरत है, छुपाने की चीज याद रखना है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो रवान की 30 तारीख को 7 तारीख शॉर्ट पैकेज लॉन्ग पैकेज 7 तारीख। आप याद रखना कि आप जो आप हज की किस्में कितनी हैं, सबसे पहले यहीं से शुरू कर देते हैं इंशाअल्लाह। हज की किस्में 3 हैं। एक तो हज इफराद है यानी नीरा हज, यहीं से एहराम बांधे और हज की नियत करके चले गए। ये एहराम आपका 10वीं जिलहिज्जा को खुलेगा, ठीक है, ये आपके लिए नामुमकिन बात है। फिर रही हज किरान, इसमें उम्रा और हज मिलाया जाता है, तो इतने दिन तक एहराम रखना वो भी आपके लिए डिफिकल्ट है। आपके लिए बेहतरीन तो वही है हज तमत्तु। हाँ, हज तमत्तु जिसमें उम्रा की नियत करके आप जाएंगे। याद रखना, मैंने सुना हूँ लोगों से कि मैं बताया कि आपने उम्रा की नियत, अरे हज के लिए जा रहे हैं, हज की नियत करेंगे। कहना मेरे भाई हज की नियत अभी से करोगे नहीं हो सकता है, आपको 7 दिन पहले और उसके बाद के और इतने सारे दिन आप एहराम की पाबंदियाँ संभाल पाओगे। बोले वो तो हज के लिए जा रहे हैं ना, बोला नहीं, तमत्तु वाला यहाँ से उम्रा की नियत करके जाएगा। तो याद रखना आप सभी लोग उम्रा की नियत करके उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। पहला उम्रा करो, उम्रा करने के बाद आपके लिए जो दिन मिलेंगे उस दरमियान में आपने सुकून से रहना है, बहुत ज़्यादा भागाभाग करनी नहीं है, क्योंकि जो भी आप तवाफ करने जाओगे, जो भी बाकी इबादतें करेंगे वो सब नफली इबादतें और सामने फ़र्ज खड़ा है। और फ़र्ज में आपको खलल आ जाएगा तो बड़ा मसला आ सकता है, पैर मुड़ गया, ये हो गया, कुछ हो गया। तो आपको अपने आप को फिट रखना है। आपको बिल्कुल, आपको बाद में बहुत दिन मिलेंगे ना, आपको उम्रा करने के, तवाफ करने के काफ़ी दिन मिलेंगे, तो आप अपने आप को फिट रखना है, समझे ना। तो सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम करना बिल्कुल, और वहाँ पर हीट बहुत रहेगी, तो आपको अपने आप को संभालना है, ठीक है ना। तो ये 3 किस्म की हज तरह से हज होता है। आप इंशाल्लाह तमत्तु करेंगे, यानी पहले जाके उम्रा करके फारिग हो जाओगे। फिर 8 जिलहिज्जा को जब जाने का वक्त आएगा मीना शरीफ के लिए, तो आप उस दिन यानी 7 तारीख, 8 तारीख लगेगी मगरिब के बाद, हमारे यहाँ कैलेंडर चेंज होता है, इस्लामी कैलेंडर। तो 8 की तारीख की रात को आपको लेके जाएंगे। तो आपने उस दिन यानी छठी रहेगी, 6 जिलहिज्जा रहेगी दिन में और शाम में होगी, तो 6 जिलहिज्जा के वक्त आप सुबह जल्दी नाश्ता करके एहराम ज़ेबेतन करके पूरी यानी पाक साफ होकर एहराम बांधकर आप हरम शरीफ जाएंगे। हरम में जाके खाने काबा के सामने हज की नियत करो, हज की नियत करो। और नियत वगैरह बिल्कुल आसान है, उम्रे की भी नियत आसान है, आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने पहले ही समझा दिया आप लोगों के, नियत ये दिल का इरादे का नाम है, जबान से कहना ए मौला मैं उम्रे की नियत करता हूँ, आसान फरमा, बाबरकत होना, तेरी मदद शामिल है आप, तो मौला तेरी रज़ा के लिए मैंने एहराम रखे, ये हो गई नियत। इसी तरह से हज की नियत, मगर हज की नियत आप खाने काबा पर करोगे, एक नफली तवाफ कर लोगे, नियत हो गई, यानी आप एहराम में आ गए हज की। अब आप एक नफली तवाफ करोगे जिसमें इस्तेबार अमल सब करते हुए सही भी करोगे, मगर सर वगैरह नहीं मुड़ाओगे। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप तवाफ ज़ियारत के लिए आओगे तो आप लोगों के सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा मसला हज के दौरान में सही में होता है, तवाफ तो आदमी कर लेता है, तो आपको सही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने एडवांस में आपने वो कर ली। और इस तरह से करके आप एहराम, तो वैसे फिर आप वापस होटल पे चले जाना, फिर रात को आपको मीना लेके जाया जाए, समझे ना। तो ये आपने जाते वक्त पहले उम्रे की नियत करो। उम्रे की नियत से पहले आप घर में से निकलोगे तो नहाना धोना, बदलवानी, साफ सफाई करना, सब अच्छे से साफ सफाई कर लो। और आपने एहराम ज़ेबेतन करना है, मकरूह वक्त नहीं होगा तो 2 रकात नफल बनियत एहराम, गुस्ल भी करोगे तो बनियत एहराम, ये सुन्नत है गुस्ल। और एहराम ज़ेबेतन करने के बाद 2 रकात नफल पढ़ोगे वो भी बनियत एहराम। अब नियत आपने वहाँ पर नहीं करनी, नियत आपने घर पे नहीं करनी है। हो सकता है आपको मिलने वाले हज के लिए जा रहे हो, एयरपोर्ट पे आएंगे, आपको फूल पोशी वगैरह करेंगे, और फूल वगैरह की ज़्यादा खुशबू होगी तो दम आ सकता है। और उसके अलावा हज की फ़्लाइट है, अगर बैठने के बाद भी थोड़ा वक्त लग गया
तो आपकी एहराम जैसे ही नियत करोगे पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी, और हज की यानी एहराम की पाबंदियाँ संभालना डिफिकल्ट होता है। तो आपने बेहतर ये है कि आप फ्लाइट में बैठने के बाद 1-2 घंटे के बाद आप नियत करें, समझे ना? 1-2, क्योंकि आपकी फ्लाइट जब पहुंचने का वक्त है तो उसके आधे से 40 से 45 मिनट पहले निकात आती है, यानी आप 2-3 घंटे बाद भी, 2 घंटे के बाद भी एहराम की यानी उम्रे की नियत कर लोगे तो चलेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप ये करोगे।